Hello everyone, welcome back to my channel. In this video lecture, I will discuss the cultivation of guava. So before starting the video, if you are new to my channel, then please subscribe and press the bell icon and like and share the video too. Now let's start the video. So here in guava, first we learn about its other common name. तो जो guava है अमरूद, उसके जो दूसरे common name होते हैं that is apple of tropics and poor man's apple. These two are the other common names of guava. Here you can see it's a guava plant. And if we talk about its botanical name, the botanical name of guava is Pseudium gojava and it belongs to the family Myrtaceae. Now I'll tell you some other important fruit crops which also belongs to the Myrtaceae family. The first one is jamun. So here jamun also belongs to the family Myrtaceae. And what is the scientific name of jamun? The scientific name of jamun is Cesium cumini. And the most important and interesting thing about jamun is that jamun has originated in our country, that is its origin is in India. And this is major fruit crop of India. And if I talk about some minor fruit crops which also belongs to the Myrtaceae family, they are pineapple guava, rose apple, watery rose apple. So these three, pineapple guava, rose apple and watery rose apple, are some minor fruit crops, but major fruit crops जो होते हैं जो Myrtaceae family को belong करते हैं, that is guava and jamun. Now if I talk about its chromosome, तो जो guava होता है, it is both diploid and triploid in nature. If the guava is diploid, then chromosome is 22, and if it is triploid, then the chromosome is 33. Mainly the diploid guavas are containing seeds and the triploid banana are generally seedless. And next is origin. So the guava has originated in tropical America, that is in Mexico or Peru region. Next one is the importance of guava. Now why guava is so much important, I will tell you. This is the most important fruit crop of India and it ranks 4th in the rank of importance, because the first most important is mango, then second is banana, and after that citrus, and guava is at 4th place. Now if I talk about its origin, तो हमने उसका जो origin था वो था tropical America. उसके बाद tropical America में ये originate होने के बाद इंडिया में कैसे पहुंचा था? सो इंडिया में जो पोर्टुगीज़ थे उन्होंने 17th सेंचुरी में इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था गुआवा फ्रूट को. Guava is an ideal fruit crop for nutritional security in India. Means guava is very much nutritious, so it helps to maintain the nutritional security in India. If I talk about its nutrition value, so vitamin C content is very rich in guava. It contains 260 to 300 milligram per 100 gram vitamin C. But this vitamin C is high in the peel of the guava. Means when the guava fruit is at maturity stage, जब guava maturity stage में आ जाता है तो उसका जो peel होता है, जो छिलका होता है, उसमें सबसे ज़्यादा vitamin C content high होता है. But if I talk about in general, तो vitamin C सबसे ज़्यादा highest किस fruit में होता है, that is in Barbados cherry. Now fiber content is 6.9. So guava is very much guava is called fibrous fruit because it contains 6.9% fiber. And this particular fruit, that is guava, is also suitable for making jelly. Why it is suitable for jelly making? Because it contains high pectin. So the fruits which are rich in pectin, they are suitable for making jelly, like guava. Next is area and production. So the maximum area in India is having Maharashtra. Means Maharashtra is having highest and maximum area under the guava cultivation, but production, now in area, first one is Maharashtra and second one is Bihar and UP. Both Bihar and UP rank second position in terms of area, but in production Bihar is at first place and after that Andhra Pradesh followed by UP, but the productivity is highest in UP. And you know that India is number 1 in guava production. So India is number 1 guava producing country in the world, but other countries which are also growing guava like China and Thailand, but the number 1 is India. Means India जो है number 1 position में है, उसके बाद China, Thailand are next to India. इंडिया में जो most of the guavas grow होते हैं वो import वो import भी होते हैं. Major importers include, जो importer countries हैं वो है US, United Arab
Emirates, that is UAE, Saudi Arabia, Netherlands, Kuwait and Jordan. So here the most important things are this: area, production, productivity, and this point is also very important that India is first in guava production. नेक्स्ट इज इट इज़ एवरग्रीन ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप. तो बेसिकली जो गुआवा होता है उसके हमने जो कॉमन नेम्स पढ़े थे, ट्रॉपिक एप्पल ऑफ ट्रॉपिक, पुअर मैन्स एप्पल, तो ट्रॉपिक वर्ड इज हेयर, तो ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप है, ठीक है. अभी इसका जो हम क्लाइमेट देखेंगे वो भी देखेंगे कि वो ट्रॉपिकल फ्रूट है. इसके अलावा एवरग्रीन है, मीन्स द गुआवा डज नॉट शेड देयर लीव्स. गुआवा में जो लीव्स होते हैं कभी भी फॉल नहीं होते, वो एवरग्रीन रहते हैं. इट्स अ डे न्यूट्रल प्लांट. नेक्स्ट इज सीजनल फ्लावरिंग. जो गुआवा होता है इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो सीजनल होती है. सीजनल में अभी हम पढ़ेंगे आगे 3 सीजन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड अम्बे बहार, मृग बहार एंड हस्त बहार. तो सीजनल फ्लावरिंग कंसेप्ट इज सीन इन गुआवा. इन्फ्लोरेसेंस इज रेसिमोज, दैट इज सॉलिटरी. तो हेयर यू सी इन दिस फिगर, जो सॉलिटरी होती है उसमें सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में एक फ्लावर आता है, मीन जो फ्लावरिंग होती है ऊपर होती है, दैट इज रेसिमोज. एंड सॉलिटरी मीन्स अकेला, जो फ्लावर होता है वो अकेला होता है, सॉलिटरी. आफ्टर दैट द bearing twigs grow a few centimeter long, putting forth 4 to 5 pairs of leaves. जो फ्लावरिंग इसमें होती है उसमें लीव्स भी इंक्लूड होती हैं, मीन्स जो फ्लावर है you can see here white color, a beautiful guava flower is here and it has pair of leaves. The blooming period varies from 25 to 45 days depending on the cultivar, season and region. तो blooming period जो होता है वो इसमें 25 to 40 days के लिए रहता है. The initial fruit set is quite high and approximately 80% of the flowers are set. तो इसमें क्या होता है, जो फ्लावरिंग होती है उसमें से कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो प्रॉपरली सेट नहीं हो पाते, वो ड्रॉप हो जाते हैं, बट एट लास्ट 80% जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट सेट होते हैं फ्रूट में. 80% ऑफ फ्लावर सेट फ्रूट्स, यानी 80% फूल से जो फल है वो फ्रूट होता है वो फॉर्म होता है. आफ्टरवर्ड्स ड्यू टू सीवियर फ्रूट ड्रॉप, जब एक बार 80% फ्लावर फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद फ्रूट्स में भी चांसेस होते हैं कि फ्रूट्स भी ड्रॉप हो सकता है. सो आफ्टरवर्ड सीवियर फ्रूट ड्रॉप, तो सीवियर फ्रूट ड्रॉप होने के बाद ओनली 34 to 56% of the fruits reach maturity. Means here you have to learn that 80% flower convert into fruits, but after that there are a lot of problem with fruits like fruit drop. So after that total 34 to 56% fruits will reach to the maturity. Means at the last जो गुआवा का प्लांट होता है उसमें 34 से 56% ही ऐसे फूल होते हैं जो फ्रूट्स होते हैं जो मैच्योरिटी तक रीच कर सकते हैं. The plant start bearing at an early age of 2 to 3 years. तो 2 to 3 years में स्टार्टिंग में ही ये bearing जो हो जाती है, इसमें फ्रूट bearing स्टार्ट हो जाती है, बट जो उसकी प्रोडक्टिव ग्रोथ होती है या वी कैन से दैट फुल bearing कैपेसिटी जो स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 8 to 10 years. अब इसमें जो फ्रूट bearing हैबिट होती है वो कैसा होता है, इसमें फ्रूट bearing हैबिट होती है एक्सिलरी bearing, दैट इज ऑन करंट सीजन ग्रोथ. एक्सिलरी bearing भी 2 कंडीशन होती हैं, ओल्ड सीजन ग्रोथ भी है, करंट सीजन ग्रोथ में. तो गुआवा के केस में जो bearing होती है वो एक्सिलरी bearing होती है, और उसमें भी जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं एक्सिलरी bearing में भी उसमें होता है करंट सीजन bearing. एक्सिलरी bearing में क्या होता है कि हेयर जो एक्सिल पोर्शन होता है means the terminal fruit bud develop to leafy shoots with axillary flowers and flower cluster. So means जो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं फ्लावर बर्ड विद एक्सिल ऑफ लीव्स. तो यहाँ फ्लावर बर्ड होती हैं और नीचे लीव्स के एक्सिल होते हैं, एंड जो बेयरिंग हो रही है वो करंट सीजन ग्रोथ में हो रही है. ये एक शूट होगी, इसके बाद एक शूट जो करंट सीजन वाली शूट होगी उसमें जो होते हैं फ्लावर्स की बेयरिंग होती है. द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन. तो प्लेसेंटेशन जो उसमें होता है, प्लेसेंटेशन का सिंपल मीन होता है एट द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूज इन द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा में ओव्यूज जो होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, तो गुआवा में जो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है दैट इज एक्सियल. एक्सियल प्रेजेंटेशन लुक लाइक दिस. तो एक्सियल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ओव्यूज आर बोर्न एट और अराउंड द सेंटर ऑफ अ कंपाउंड ओवरी. तो जो ये ओवरी है उसके सेंटर में ये ओव्यूल्स जो होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं, एक्सियल अरेंजमेंट. दिस इज कॉल्ड एक्सियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन एंड दिस इज फाउंड इन गुआवा.
गुआवा का जो टाइप ऑफ फ्रूट्स है, इट इज़ बेरी. Guava is a climatic fruit. Climatic fruit means those fruits which are not fully ripen on plants. Means if we harvest the guava from the plant in between, then it has a capacity to develop or mature after that. Means harvesting के बाद भी अगर fruit mature हो सकता है, that is climatic fruit. The edible portion is thalamus and pericarp. The major compounds, color compounds in fruits. So mostly guava is of two types according to color. Mature guava जो होता है ग्रीन कलर का शो होता है या फिर येलो कलर का शो होता है. ग्रीन कलर का जो शो होता है दैट इज ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट, बट द येलो कलर इज डेवलप्ड ड्यू टू द xanthophyll पिगमेंट. Now if we talk about the pollination, so guava is basically a cross pollinated crop, and the cross pollination is taken by through a insect. Means जो cross pollination होता है that is due to some insect, and that insect is honeybee. So guava is a insect pollinated crop. Next one is we have to discuss here some important species of guava. एक तो हमने गुआवा का साइंटिफिक नेम पढ़ा था सीडियम गुजावा, बट इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ होती हैं गुआवा की, तो उनकी हमें कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं वो डिस्कस करना है. द फर्स्ट वन इज ब्राज़ीलियन गुआवा, और वी कैन से दैट ग्विनिया गुआवा. हियर यू सी इन दिस फिगर, दिस इज येलो वन, दिस इज द ग्विनिया और ब्राज़ीलियन गुआवा. द साइंटिफिक नेम इज सीडियम ग्विनीज, तो ग्विनिया से ग्विनीज बन जाता है यहाँ पे, और गुआवा का साइंटिफिक नेम सीडियम से स्टार्ट होता है, दैट इज सीडियम ग्विनीज. इसका जो फीचर है वो ये है कि फ्रूट जनरली इसके स्मॉल होते हैं, पुअर क्वालिटी होते हैं. हेयर यू सी ये जो है सीडियम गुजावा, आई मीन ये है ब्राज़ीलियन गुआवा, येलो कलर का होता है, छोटा छोटा होता है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर होती है. द नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉबेरी गुआवा, और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैटिलिया गुआवा. तो स्ट्रॉबेरी गुआवा को कैटिलिया गुआवा भी बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम भी इसका कैटिलिया से बन जाता है, सीडियम कैटिलियनम. तो कैटिलिया से कैटिलियनम ईजी हो जाता है लर्न करना. और इसकी खास बात यह है कि ये जल्दी टेम्परेट सीजन में भी ग्रो हो जाता है. मींस अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, दैट इज इफ द टेम्परेचर इज बिलो -5 डिग्री सेंटीग्रेड दैन इट ऑल्सो सर्वाइव. तो स्ट्रॉबेरी गुआवा की ये जो है खासियत है. इसके अलावा हेयर यू सी इन दिस फिगर, दिस इज द स्ट्रॉबेरी और कैटिलिया गुआवा. ये स्ट्रॉबेरी का जैसे कलर होता है उस टाइप का ही रेड कलर का होता है, और इनर इफ वी कट सो इट लुक्स लाइक समवट दिस white or pink mixture. The next one is Costa Rica guava, or we can say China guava. So Costa Rica guava, China guava is very important because most of the time the scientific name of this particular guava is Arx. तो कोस्टा रिका को चाइना गुआवा भी बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम जो होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सीडियम. नाउ हियर यू कैन डिवाइड इट फॉर योर इजी लर्निंग. हियर यू डिवाइड फ्रेट, रिट्स, थैलियानम. तो here you divide in 3 equal parts so that it is easy to you for learn. तो यहाँ पे 3 हिस्से हो गए, एक होता है फ्रेट, एक होता है रिच और थैलियानम. तो कंबाइन करके बन गया फ्रेडरिच थैलियानम. तो चाइना गुआवा का साइंटिफिक नेम होता है सीडियम फ्रेडरिच थैलियानम, एंड दिस इज वेरी स्मॉल ग्लोब्यूल शेप टाइप ऑफ फ्रूट, and the characteristic is that this is resistance to wilt. Wilt is a type of a disease which is very prominent or common in guava food crop nowadays. तो wilt का जो resistant है वो इस चाइना गुआवा में शो होता है, and here this is the figure of China guava. The next one is Guisaro guava, and the scientific name of Guisaro guava is Pseudium molli, and here's this is wild in nature. The last one is mountain guava. Mountain guava scientific name is Pseudium montanum. So mountains become montanum. So here you can see this is mountain guava, yellow color, and if we cut the fruit it look like this, brown color seeds. So these are some common these are some important species of guava. The next one is climate. So गुआवा का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? गुआवा इज बेसिकली अ ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप. ये एक ट्रॉपिकल कंडीशन का फ्रूट क्रॉप है, बट इट कैन ईजिली ग्रो अंडर सब ट्रॉपिकल कंडीशन ऑल्सो.
है तो ये ट्रॉपिकल फ्रूट बट सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में भी ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसके अलावा ये ग्रो हो सकता है 1000 to 1500 मीटर्स अबव सी लेवल, इतना एल्टीट्यूड में ये अच्छे से कल्टिवेट हो सकता है। प्लेसेस हैविंग मोर देन 250 सेंटीमीटर रेनफॉल आर नॉट सुटेबल फॉर गुआवा। अगर ज़्यादा ही बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल अगर किसी एरिया में होती है, तो वहाँ पे हम गुआवा का कल्टिवेशन जो है, गुआवा जो है वो सुटेबल नहीं, अच्छे से ग्रो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देयर इज़ अ रीज़न, बिकॉज क्या होता है कि ज़्यादा बारिश अगर होगी तो वाटर की वजह से क्या होता है, सबसे पहले तो फ्रूट क्वालिटी जो होगी वो डिटोरेट हो जाती है, फ्रूट क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो गुआवा प्रोड्यूस होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, दैट इज़ 23 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये गुआवा के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इसके अलावा विंटर सीजन जो होता है इट इज़ मोस्टली प्रिफर फॉर गुआवा कल्टिवेशन। सो बिकॉज वाई इट इज़ प्रिफर, बिकॉज जो उसमें ईल्ड आती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, जो फ्रूट्स की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव्ड होती है। मीन्स इम्प्रूव्ड फ्रूट्स आर प्रोड्यूस इन द विंटर सीजन। बेसिकली अभी हमने पढ़ा था जो गुआवा होता है उसमें सीजनल फ्लावरिंग होती है। सीजनल में 3 सीजन हमने पढ़ने हैं, भी आगे पढ़ेंगे, अम्बे बहार, मेघ बहार, हंसबहार। तो जो उसमें से विंटर सीजन वाला फ्रूट्स होते हैं दे आर जनरली हैविंग गुड फ्रूट क्वालिटी। एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, ये 2 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब गुआवा में फूल आने वाले होते हैं या फल आने वाला होता है, इट रिक्वायर्स ड्राई क्लाइमेट। उस टाइम पे क्लाइमेट ड्राई होना चाहिए। हाई टेम्परेचर एंड हाई वेलोसिटी ऑफ विंड एट फ्रूट डेवलपमेंट पीरियड लीड्स टू द वेरी हैवी फ्रूट ड्रॉप। तो अगर टेम्परेचर कम होगा या विंड की वेलोसिटी हाई होगी तो फ्रूट ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम पे क्लाइमेट एकदम ड्राई होना चाहिए, विंड नहीं चलनी चाहिए, टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, दैट इज मीन्स वार्म कंडीशन होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज द सॉइल रिक्वायरमेंट। द सॉइल जनरली जो गुआवा होता है वो वाइड रेंज ऑफ सॉइल में ग्रो हो सकता है, बट इसके अलावा वेल ड्रेन लाइट सैंडी लोम टू क्ले सॉइल इज गुड। तो अच्छी सी वेल ड्रेन होनी चाहिए और सैंडी लोम से क्ले वाली जो सॉइल होती है वो उसके लिए अच्छी होती है। सिंस इट इज़ अ हार्डी फ्रूट क्रॉप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो गुआवा होता है वो एक हार्डी फ्रूट क्रॉप होता है। हार्डी फ्रूट क्रॉप होने के कारण हम इसको अलग अलग सॉइल्स में ग्रो कर पाते हैं। इसके अलावा जो अल्कलीन सॉइल्स होती हैं या जो वेस्टलैंड वाला एरिया होता है, ठीक है, उन एरियाज़ में भी अल्कलीन सॉइल्स हो गई और वेस्टलैंड जो होते हैं उनमें भी हम इसको ईजिली कल्टिवेट कर सकते हैं, बट इट इज़ सेंसिटिव टू वाटर लॉक्ड कंडीशन। तो वाटर लॉक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मीन्स इरिगेशन करते वक्त ध्यान रखना कि वाटर लॉगिंग की कंडीशन ना हो। प्रॉपर अगर वाटर लॉगिंग हो जाती है, इरिगेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। तो क्योंकि वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। इट कैन टॉलरेट टू अ pH ऑफ 4.5 to 8.5। तो ये एसिडिक pH से बेस pH में की रेंज की जो सॉइल होती है उसमें ग्रो हो सकते हैं। यू कैन सी 4.5 एसिडिक हो गया और 8.5 बेसिक होता है। तो गुआवा जो है एसिडिक और बेसिक सॉइल्स के pH में इजीली ग्रो हो जाता है। बट इसके अलावा इफ द सॉइल आर हैविंग pH 7.5 एंड अबव, दीज आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग गुआवा विल्ट। तो अभी हमने पढ़ा था गुआवा की जो विल्ट वाली प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती जा रही है नाउअडेज। तो गुआवा विल्ट की जो प्रॉब्लम होती है वो कब होती है? अगर हम गुआवा क्रॉप को कल्टिवेट करते हैं एक ऐसी सॉइल में जिसका pH 7.5 या उससे भी ज़्यादा है, यानी एल्कलीन pH की तरफ अगर मूव कर रहे हैं, तो गुआवा विल्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसीलिए कुछ वैरायटीज़ हैं लाइक लखनऊ 49, इसको हम सैलीन कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं बिकॉज इसमें रेजिस्टेंट है थोड़ा बहुत। The next one is varieties. So this is very important part of the guava. I think जितने भी क्रॉप्स होते हैं उसमें वैराइटीज़ जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। तो यहाँ पे जो गुआवा की वैराइटीज़ हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, बेस्ड ऑन सीड्स एंड बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द फ्लैश। जो अंदर वाला फ्लैश वाला पोर्शन होता है, एडिबल पोर्शन, उसका कलर कैसा है। तो सीड्स के बेसिस पे 2 कैटेगरीज होती हैं, सीडेड वैराइटीज विच कंटेन सीड्स एंड द सीडलेस वैराइटी विच डजंट कंटेन सीड। जनरली द सीडेड वैराइटीज हैव क्रोमोसोम 22 and the varieties which are seedless they having chromosome they are diploid in nature। तो क्रोमोसोम यहाँ पे 33 हो जाता है। अब सीडलेस वैरायटी में भी 2 कंडीशन आती हैं। सीडलेस वैरायटी की 2 कंडीशन होती हैं कि वो कम्प्लीटली सीडलेस होंगे या फिर पार्शली सीडेड
कम्प्लीटली सीडलेस जो होते हैं उसमें बिल्कुल भी सीड्स नहीं होंगे, पार्शली सीडेड में थोड़े बहुत सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कम्प्लीटली सीडेड और पार्शली सीड्स में भी डिफरेंस क्या होता है। हेयर यू सी द कम्प्लीटली सीडलेस फ्रूट्स डेवलप ऑन द शूट अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम एंड देर आर बिगर इन साइज एंड इरेगुलर इन शेप। तो जो कम्प्लीटली सीडलेस फ्रूट्स होते हैं जिनमें बिल्कुल भी बीज नहीं होते, वो जो फ्रूट्स होते हैं बिग होते हैं एंड इरेगुलर उनका शेप होता है। बट जो पार्शली सीडेड फ्रूट्स होते हैं जिनमें थोड़े बहुत सीड्स पाए जाते हैं, दे आर बोर्न ऑन नॉर्मल शूट्स एट द पेरीफेरी एंड दे आर स्मॉल साइज एंड राउंड इन शेप। तो डिफरेंस जो है दोनों में ये है, कम्प्लीटली सीडलेस वाले जो होते हैं उनका साइज बड़ा होगा बट इरेगुलर शेप का होगा, ठीक है। पार्शली सीडेड जो फ्रूट्स होते हैं छोटे होंगे पर उनका शेप राउंड होता है, छोटे और राउंड होंगे। इसके अलावा अगर कलर की बात करें तो हम जो फ्लैश खाते हैं अंदर का वो जनरली वाइट सबने देखा होता है, वाइट फ्लैश तो बहुत कॉमन है। इसके अलावा रेड फ्लैश कलर की वैरायटीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं गुआवा में। नाउ वी डिस्कस द वैरायटीज़ इन डिटेल। तो जो सीडेड वैरायटीज़ हैं और सीडलेस वैरायटीज़ हैं उनको हम कवर करेंगे। द वैरायटी विच कंटेन सीड्स लाइक अलाहाबाद सफ़ेदा, लखनऊ 49, अर्का मृदुला, रेड फ्लैश्ड, अर्का सुरखा। तो यहाँ पे इतनी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। इतनी वैरायटीज़ जो हमने अभी पढ़ी हैं इन सब में सीड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो अलाहाबाद सफ़ेदा है ये इलाहाबाद यानी यूपी रीजन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लखनऊ 49 भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूपी में। अर्का मृदुला जो वैरायटी है इट इज़ रिलीज बाय IIHR बेंगलोर। इसके अलावा जो सीडलेस वैरायटी हैं, सीडलेस वैरायटी बहुत ईजी है नाम याद करने में क्योंकि उनके नाम में ही सीडलेस आते हैं, जैसे नागपुर सीडलेस, सहारनपुर सीडलेस। तो ये सीडलेस वैरायटीज़ दो ही हैं इसमें। इसके अलावा अदर वैरायटीज़ में आती है नासिक, धारवाड़ एंड एप्पल कलर। एप्पल कलर एक वैरायटी है, डोंट कंफ्यूज है, एप्पल कलर से कंफ्यूज होने की एप्पल है ये। एप्पल कलर एक गुआवा की वैरायटी का नाम है। बनारसी, हाफसी, अन्नकपाली, हरीजा। हरीजा is also very important variety and चित्तीदार. चित्तीदार is also one of the important variety. Lot of time questions asked in exam like which crop variety is this, which crop variety is this. तो ये हरीजा, चित्तीदार किस क्रॉप की वेराइटीज होती हैं, क्रॉप्स के ऑप्शंस ये होते हैं एंड यू हैव टू चूज द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज गुआवा. नाउ वी डिस्कस सम मोर varieties along with their breeding methods and features. So first one is हरीजा. हरीजा जो वैरायटी है गुआवा की, ये हरीजा वैरायटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बिहार स्टेट में. इसके अलावा जो वैरायटीज़ आती हैं इलाहाबाद सुरखा, इलाहाबाद सफ़ेदा एंड इलाहाबाद सुरखा. तो इलाहाबाद से समझ में आ रहा है कि यूपी की वैरायटीज़ हैं और सफ़ेदा मीन्स ये है वाइट फ्लैश वैरायटी है क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. और सुरखा, इलाहाबाद सुरखा, सुरखा का मतलब होता है कि इसका फ्लैश का कलर जो होता है पिंक होता है. जो हम खाते हैं अंदर वाला पोर्शन दैट इज़ पिंक इन कलर एंड लार्ज फ्रूटेड वैराइटीज़ की फ्रूट साइज़ बहुत बड़ा होता है. अब यहाँ पे जो इलाहाबाद सुरखा का गुआवा है ना, वो दिखने में कैसे लगेगा, बाहर से तो नॉर्मल होगा ग्रीन कलर का बट अंदर से पिंक फ्लैश होता है. इसके बाद चित्तीदार वैरायटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन हाईएस्ट कंटेंट ऑफ TSS. तो ये सबसे ज़्यादा TSS जो होता है टोटल सॉल्युबल सॉलिड वो होता है इस चित्तीदार वैरायटी में. इसके बाद वी हैव टू लर्न सम वैरायटीज़ विच आर डेवलप बाय GS चेमा एंड देशमुख. तो ये क्वेश्चन आता है कि कुछ वैरायटीज़ पूछ ली जाती हैं और उनको किसने डेवलप करा है. तो साइंटिस्ट हैं दो, GS चेमा एंड देशमुख, इन्होंने ये वैरायटीज़ को डेवलप करा है. कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं? द फर्स्ट वन इज़ लखनऊ 46. ये जो होती है जनरली पियर पाइफॉर्म शेप की होती है, नाशपाती जैसा होता है उसका वैसी शेप होता है. इसके बाद लखनऊ 49, इसको शॉर्टकट में L49 भी बोलते हैं और इसको दूसरा नाम है सरदार गुआवा. सो हेयर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि सरदार गुआवा किस वैरायटी को बोलते हैं, दैट इज L49 या फिर लखनऊ 49. एंड दिस वैरायटी इज़ वेरी पॉपुलर. दिस इज़ अ सिलेक्शन फ्रॉम इलाहाबाद सफ़ेदा. तो इलाहाबाद सफ़ेदा के एक डिफरेंट प्रोसेस से ही हमने ये L49 वैरायटी को सिलेक्ट करा है. तो लखनऊ यूपी में आता है और इलाहाबाद भी यूपी में. तो यू कैन ईजिली कनेक्ट जो लखनऊ यानी L49 वैरायटी वो इलाहाबाद सफ़ेदा के सिलेक्शन से बनी है. और इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि ये वैरायटी जो है विटामिन C कंटेंट में रिच होती है, हाईएस्ट होता है विटामिन C इसमें, और ये नेशनल वैरायटी है इंडिया की. सो हेयर यू कैन ईजिली लर्न विच इज़ द नेशनल वैरायटी ऑफ गुआवा इन इंडिया. तो गुआवा की जो नेशनल वैरायटी है इंडिया में दैट इज, उसके नाम 3 हैं. उसको लखनऊ 49 भी बोलते हैं, शॉर्ट में L49 बोलते हैं या फिर सरदार गुआवा बोलते हैं.
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, दिस इज़ द नेशनल वैरायटी। इसके बाद नागपुर सीडलेस है। सफ़ेद जैम जो होता है इसका क्रॉस क्या है, अलाहाबाद सफ़ेदा क्रॉस विद कोहिर। कोहिर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ गुआवा। तो अलाहाबाद सफ़ेदा जो है फीमेल है, कोहिर मेल पेरेंट होता है। तो अलाहाबाद सफ़ेदा को जब हम क्रॉस कराते हैं कोहिर के संग जो वैरायटीज़ रिलीज़ हुई है वो दैट इज़ सफ़ेद जैम। उसके बाद कोहिर सफ़ेदा में हम रिवर्स कर देंगे। कोहिर देखो यहाँ में पे कोहिर पहला आ रहा है, कोहिर में कोहिर पहले होगा, दैट इज़ कोहिर क्रॉस विद अलाहाबाद सफ़ेदा। और यहाँ पे सफ़ेद पहला आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अलाहाबाद सफ़ेदा पहले आ रहा है। और कोहिर यहाँ पहला है तो यहाँ पे पेरेंट में कोहिर पहला हो जाएगा। द नेक्स्ट वैरायटीज़ आर जो रिलीज़ हुई हैं IIHR, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कि बेंगलोर में है। ठीक है, उन्होंने कुछ वैरायटीज़ रिलीज़ करी हैं, 3 वैरायटीज़ हैं। और जनरली IIHR की जो वैरायटीज़ होती हैं उनकी स्टार्टिंग किससे होती है, इनकी स्टार्टिंग होती है अर्का से। अर्का वैरायटीज़ जो होती हैं दे आर जनरली रिलीज बाय IIHR। तो गुआवा की 3 इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ जो हैं जो IIHR से रिलीज हुई हैं, दैट इज़ अर्का अमूल्या, अर्का मृदुला एंड अर्का किरण। तो दीज आर वेरी इजी नेम, अमूल्या, मृदुला, किरण। अमूल्या जो है उसका क्रॉस क्या है, अलाहाबाद सफ़ेदा को क्रॉस करा है ट्रिप्लॉइड गुआवा से। तो अब यहाँ पे ट्रिप्लॉइड सीडलेस गुआवा से इसको क्रॉस कराया है और इसकी बनी है अर्का अमूल्या। अर्का मृदुला जो है सीडलिंग सिलेक्शन ऑफ अलाहाबाद सफ़ेदा। और इसके बाद आती है अर्का किरण। तो यहाँ पे ये क्रॉसेस तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इनके जो नेम्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अर्का किरण का जो होती है वो पिंक फ्लैश्ड वैरायटी, इसका अंदर का फ्लैश पिंक होता है। इसके बाद वी हैव टू लर्न सम वैरायटीज़ विच आर रिलीज बाय CISH। CISH लखनऊ में है। CISH का मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। तो ये लखनऊ में इसका लखनऊ से रिलीज़ हुई है। इसमें पहली आती है CISH G1। दिस इज़ द सीडलिंग सिलेक्शन फ्रॉम अलाहाबाद सफ़ेदा। तो ये अलाहाबाद सफ़ेदा के ही क्रॉस की सीडलिंग सिलेक्शन से तैयार हुई है। ये वैरायटी की खास बात यह है कि दिस इज़ रेड कलर वैरायटी हैविंग अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ। तो ये रेड कलर की होती है। इसके अलावा आती है ललित। ललित मीन्स होता है लाल, ललित से लाल कनेक्ट करना, लाल मतलब कि रेड कलर वैरायटी है। ललित इज डेवलप फ्रॉम अगेन सीडलिंग सिलेक्शन ऑफ अलाहाबाद सफ़ेदा। ये भी अलाहाबाद सफ़ेदा के बनी है। ठीक है, अभी हमने कितने सारे पढ़ लिए, अर्का मृदुला पढ़ा और ये CISH G1 पढ़ा और ललित पढ़ा। ये सब अलाहाबाद सफ़ेदा के सिलेक्शन से बने हैं। इसके बाद लास्ट आती है श्वेता। श्वेता इज सिलेक्शन फ्रॉम हाफ से पॉपुलेशन ऑफ एप्पल कलर। तो एप्पल कलर एक वैरायटी हमने पढ़ी थी अभी आगे, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था एप्पल कलर एक वैरायटी है गुआवा की, तो उससे बनी है श्वेता। और श्वेता नाम से ही समझ में आ रही है श्वेता, इट मे बी वाइट फ्लैश having white flash. The next one are the HAU variety, that is हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विच इज़ इन हिसार। तो हिसार की जो वैरायटीज़ है उसमें हिसार से शुरू होगा, हिसार सफ़ेदा, हिसार सुरखा। जैसे अभी हमने इलाहाबाद से पढ़ा था इलाहाबाद सफ़ेदा, इलाहाबाद सुरखा। तो यहाँ पे भी वही है, जो हिसार सफ़ेदा होता है इसका जो पेरेंटल क्रॉस है दैट इज इलाहाबाद सफ़ेदा क्रॉस विद सीडलेस। और जो हिसार सुरखा है वहाँ पे एप्पल कलर को क्रॉस कराया है बनारसी सुरखा से। और ये हिसार सुरखा जो होता है, सुरखा जहाँ पे वर्ड आ रहा है दैट इज़ पिंक फ्लैश। इसके बाद ट्राई G1, ये भी सिलेक्शन से बनी है। ट्राई G1 की खास बात है कि ये ऑफ सीजन बेयरिंग होती है और ड्राउट टॉलरेंट है। इसके बाद अभी हमने, चलो अब डिस्कस करते हैं एप्पल कलर इज़ अ वैरायटी ऑफ गुआवा। ये जो अभी हमने क्रॉस पढ़ा था ना यहाँ पे एप्पल कलर, पीछे भी हमने क्रॉस पढ़ा था एप्पल कलर। तो एप्पल कलर इज़ पर्टिकुलरली वैरायटी ऑफ गुआवा। एप्पल कलर कोई एप्पल कलर से ये मत समझना कि एप्पल के कलर के बारे में बात हो रही है और एप्पल का कलर रेड है। नो, एप्पल कलर एक वैरायटी है गुआवा की। इसको एप्पल कलर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस गुआवा का जो बाहर की स्किन है वो रेड होती है। अभी हमने जो वैरायटी डिस्कस कर रही थी, हमने पिंक फ्लैश वैरायटी होती है, वाइट फ्लैश वैरायटी होती हैं। तो फ्लैश यानी उसका खाने वाला जो पोर्शन होता है अंदर का, वो उसकी बात हो रही थी। लेकिन एप्पल कलर एक ऐसा गुआवा है जो बाहर से दिखने में भी लाल होता है, रेड स्किन होती है इसकी, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एप्पल कलर। और नेक्स्ट थिंग इज दिस एप्पल कलर वैरायटी इज टॉलरेंट टू एंथ्रेक्नोज डिसीज एंड फ्रूट कैंकर। नेक्स्ट वैरायटी है हफ्सी। हफ्सी इज अगेन अ रेड फ्लैश वैरायटी, मीन्स इसका अंदर का फ्लैश जो होगा लाल होगा। ठीक है, जहाँ पे फ्लैश आता है तो यू हैव टू लर्न जो एडिबल पार्ट है। जैसे एप्पल कलर में हम स्किन की बात करते हैं, बाहर की स्किन लाल है,
बेहद कोकोनट, सो दीज ऑल्सो वेरी कन्फ्यूजिंग, यू रिलेट्स इट विथ कोकोनट। तो ये कोकोनट नहीं है, ये बेहद कोकोनट एक वैरायटी का नाम है गुआवा की। तो एप्पल कलर और बेहद कोकोनट, दीज टू आर वेरी कन्फ्यूजिंग वेराइटीज़ बिकॉज इट कंटेन्स द नेम ऑफ सम अदर क्रॉप। यहाँ पे एप्पल का नाम आ रहा है, कोकोनट का नाम आ रहा है, डोंट बी कन्फ्यूज। And the next one is Pusas region. This is very important. Pusas region having a potential dwarfing rootstock for high density planting. तो ये जनरली हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज़ होती है एंड दिस इज टॉलरेंट टू विल्ट। तो विल्ट प्रॉब्लम जो है बहुत ही प्रोमिनेंट होती है गुआवा में। पूसस रीजन में क्या है, विल्ट के लिए रेजिस्टेंट, आई मीन विल्ट के लिए टॉलरेंट होता है। और ये एचडीपी यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज़ होती है बिकॉज इट इज अ ड्वार्फिंग रूट स्टॉक। नाउ वी डिस्कस द प्रोपगेशन मेथड्स ऑफ गुआवा। तो गुआवा को कैसे प्रोपगेट करते हैं, तो पहला तरीका होता है सीड से। ये जो सीड वाला मेथड है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बट स्टिल सम ऑर्चर्ड्स आर देयर, दे still rely on seed propagation methods for their commercial seed propagation method। इसमें क्या होता है, जनरली ये कॉमन नहीं है बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि सीड्स का जो प्रोपगेशन होता है, सीड प्रोपगेशन में एक प्रॉब्लम आती है कि जो ट्रीज़ होते हैं वो जनरली उनमें वेरिएशन होती है। वेरिएशन किस चीज़ के लिए होती है, उनका फ्रूट का साइज़ वेरी कर सकता है, ईल्ड वेरी करती है, क्वालिटी वेरी करती है, जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो सीड प्रोपगेशन इसलिए सुटेबल नहीं होता। इसके अलावा भी कुछ लोग बहुत हैं जो सीड प्रोपगेशन करते हैं, तो हमें सीड्स को सबसे पहले ट्रीट करना होता है। सीड ट्रीट करते हैं HCl के साथ ताकि उसका जर्मिनेशन प्रॉपर हो जाए। द नेक्स्ट मेथड इज एयर लेयरिंग या फिर ग्राउंड लेयरिंग। तो एयर लेयरिंग जनरली इसको बूटी बोलते हैं, इस तरह से एयर लेयरिंग होती है। एयर लेयरिंग जनरली हम प्रैक्टिस करते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में एयर लेयरिंग प्रैक्टिस होती है। और ये एयर लेयरिंग की जो प्रैक्टिस होती है जनरली कौन से स्टेट्स में होती है, जनरली जो साउथ इंडिया वाला पार्ट होता है, साउथ इंडियन स्टेट्स में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। और ये बहुत ही चीप, कन्वीनियंट और इजी मेथड होता है। द लेयर्ड प्लांट बीइंग ऑन इट्स ओन रूट ग्रो मोर विगरसली एंड एस्टैब्लिश क्विकली इवन इन डिफिकल्ट सॉइल कंडीशन। तो जो एयर लेयरिंग प्लांट्स होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें प्लांट्स का जिस पोर्शन से हमें डेवलप करना होता है उस पोर्शन को हम स्क्रैप करते हैं, वहाँ पे स्फेग्नम मॉस अप्लाई करते हैं और अच्छे से प्लास्टिक शीट्स उसको कवर कर देते हैं। फिर वहाँ पे इचोलेशन क्रिएट होता है। इचोलेशन मीन्स होता है डार्कनेस, आई मीन क्योंकि जो रूट्स डेवलप होती हैं वो डार्क कंडीशन में ही होती हैं, तो इसलिए हम उसको अच्छे से सॉइल या स्फेग्नम मॉस से कवर करते हैं ताकि वहाँ पे इचोलेशन क्रिएट हो जाए। उसके बाद वहाँ पे रूटिंग डेवलप होती है। उसके बाद हम उसको डिटैच करके एक सेपरेट प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड मेथड आता है बर्डिंग। बर्डिंग में भी शील्ड बर्डिंग यूज़ होता है, टी बर्डिंग या फिर पैच बर्डिंग। सो ये हेयर यू सी इन दिस फिगर, ये पैच होता है रेक्टेंगल शेप का। इसको हम कट करते हैं अलॉन्ग विद बर्ड, तो इसमें एक बर्ड भी होती है। इस बर्ड के साथ हम कट करके डिज़ायर्ड जो रूट स्टॉक्स होते हैं उसमें लगा दिया जाता है, दैट इज़ बर्डिंग। और ये भी हम रेनी सीजन यानी मई जून के टाइम पे परफॉर्म करते हैं। एनआर्चिंग मेथड भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। इनआर्चिंग भी एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जो कि अगेन ये भी जुलाई अगस्त यानी मानसून सीजन में करा जाता है। इससे भी जो सक्सेस होता है वो हाई होता है इससे भी, ठीक है। इसमें इनआर्चिंग में क्या करते हैं, हमारा जो साइन होता है और जो रूट स्टॉक होता है उसको हम आपस में रखते हैं, ठीक है, इस आपस में अटैच करके रखते हैं उसके। ये देखो ये अटैच्ड है। इसके बाद जब कुछ टाइम बाद जब प्लांट अपने आप रूट डेवलप करने लगे उसके बाद हम उस पार्ट को जो अनवांटेड पार्ट होते हैं उसको हम रिमूव कर देंगे और उस प्लांट को मदर प्लांट से हम हटा के एज अ न्यू इंडिविजुअल क्रॉप वी कैन इजीली कल्टिवेट। बट जो कॉमर्शियल मेथड होते हैं गुआवा में वो होता है एयर लेयरिंग वाला या फिर पॉट लेयरिंग या फिर इनआर्चिंग मेथड। दीज आर सम कॉमन मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन। द नेक्स्ट वन इज प्लांटिंग। नाउ गुआवा की जो प्लांटिंग होती है उसकी जो सबसे ज़्यादा फील्ड प्रिपरेशन होता है, लैंड प्रिपरेशन होती है। तो फील्ड को हम अच्छे से डीपली प्लो कर लेंगे, प्रॉपर्ली लेवल कर लेंगे बिफोर प्लांटिंग। उसके बाद सब कुछ करने के बाद उसमें पिट्स बनाते हैं, पिट्स ऑफ 75 to 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसका आई मीन पिट का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। और ये हम करते हैं ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून के टाइम पे करते हैं ये सब, क्योंकि प्लांटिंग जो हम करेंगे मानसून के पीरियड में ही करते हैं। उसके बाद पिट्स हमने बना लिया। पिट बनाने के बाद हम वी हैव टू फिल समथिंग इनसाइड इट। वी हैव टू फिल FYM, compost और soil in equal proportion
एंड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ टर्माइट। तो टर्माइट्स की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी यूज सम केमिकल लाइक लिंडेन। लिंडेन इज ऑल्सो मिक्सड विद सॉइल मिक्सचर। इसके बाद हम सब कुछ करने के बाद गुआवा की प्लांटिंग करेंगे। तो गुआवा की जो प्लांटिंग हम करते हैं जनरली साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं। साउथ कंडीशन में क्या होता है कि जून से दिसंबर तक का टाइम होता है प्लांटिंग का, लेकिन नॉर्थ इंडिया में मानसून सीजन होता है, दैट इज़ जून टू अगस्त, यानी मानसून का जो पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो नॉर्थ इंडिया में मानसून के पीरियड में ही प्लांटिंग होती है, बट जो साउथ इंडिया है यहाँ पे जून से दिसंबर यानी जाड़ों तक, विंटर सीजन तक वहाँ पे प्लांटिंग के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस इट स्पेसिंग। तो जो कॉमन स्पेसिंग हम रखते हैं वो हम रखते हैं 6x6 यानी स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग यहाँ पे फॉलो होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होती है, फर्टाइल सॉइल में हम स्पेसिंग को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि फर्टाइल सॉइल में हम स्पेसिंग इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि फर्टाइल सॉइल है, प्लांट्स ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा ग्रो करेगा तो रिक्वायर मोर स्पेस, तो यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ा देते हैं ताकि प्रॉपर स्पेस उसको मिल सके। लेकिन अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर रहे हैं तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम एक वैरायटी है इलाहाबाद सफ़ेदा, उसी का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इलाहाबाद सफ़ेदा जनरली ड्वार्फ नेचर की होती है, दैट इज़ वाई उसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज़ करते हैं और उसकी स्पेसिंग रिड्यूस हो जाती है 3x6 मीटर। इसके बाद एक होता है मिडो ऑर्चिड सिस्टम। इसको हम मिडो ऑर्चिड को अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी या फिर इसमें एकदम और क्लोज कर देते हैं स्पेसिंग, मतलब बहुत पास क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इसमें जो स्पेसिंग रिड्यूस जाती है 1/2 मीटर। तो कितने क्लोज, कितने पास हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, मीन्स 1 हेक्टेयर में हम अगर इतनी स्पेसिंग के अकॉर्डिंग प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो वी ऑब्टेन 5000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। एंड दिस मिडो सिस्टम ऑफ ऑर्चिड इज़ वेरी मच पॉपुलर इन गुआवा क्रॉप। ये सिस्टम किसने दिया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो गुआवा में जो मिडो ऑर्चिड सिस्टम है ये डेवलप्ड हुआ है CISH लखनऊ के द्वारा। नाउ हियर we will discuss the Bahar treatment in guava. Bahar treatment is very important in particularly guava crop. Now what is this? See, under natural condition the guava tree produce flowers and fruits twice in a year in North India. तो नॉर्थ इंडियन कंडीशंस जो होती है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम गुआवा ग्रो करते हैं तो गुआवा क्रॉप में जो फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो एक साल में 2 बार आते हैं, दैट इज़ ट्वाइस इन अ ईयर। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ नॉर्थ इंडिया। बट जो साउथ इंडिया कंडीशन होती है या फिर वेस्टर्न इंडियन की जो कंडीशंस होती है वहाँ पे क्या होता है कि ट्वाइस की जगह थ्राइस हो जाता है, दैट इज एक साल में 3 बार वहाँ पे फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट भी आते हैं इन अ ईयर, एक साल में, विच रिजल्ट्स इन नो रेस्ट पीरियड, जिसकी वजह से क्या होता है कि गुआवा कभी रेस्ट पीरियड में नहीं आता। अल्टीमेटली गुआवा ट्रीज बियर स्मॉल क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। तो होता क्या है कि एक क्रॉप है गुआवा का, साउथ और वेस्टर्न इंडियन कंडीशंस में क्या होती है कि वहाँ पे जो क्रॉप होती है गुआवा की वो एक साल में 3 बार उसमें फ्लावर्स आता है, फ्रूट बनता है। तो ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे जो गुआवा होता है वो कभी भी रेस्ट पीरियड में आता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स में बहुत पुअर क्वालिटी के, बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे फ्रूट्स आते हैं बट उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो इसलिए हमें उसमें क्या करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है। और ये 3 टाइम में जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग गुआवा क्रॉप में आती है उसको हम बोलते हैं बहार, ठीक है। तो जो फॉलोइंग पैटर्न होता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को, 3 बहार होती है उसमें, 3 बहार में वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ अम्बे बहार, दैन मृग बहार एंड थर्ड वन इज़ हस्त बहार। नाउ वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट दीज 3 बहार। तो जो 3 बहार आती है गुआवा में, फर्स्ट वन इज़ अम्बे बहार। अम्बे बहार क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अम्बे बहार वाले जो गुआवा होते हैं इसमें क्या होता है कि फ्लावरिंग आती है Feb to March, Feb to March दैट इज़ स्प्रिंग सीजन जिसको बोलते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि फूल आते हैं, उसके बाद फूल आने के बाद जुलाई सितंबर का जो टाइम होता है वहाँ पे फ्लावर से फ्रूट डेवलप हो जाता है। तो अम्बे बहार में स्प्रिंग सीजन में फ्लावर करते हैं और जून जुलाई सितंबर में उसमें फ्रूटिंग आ जाती है। इस क्वालिटी की, इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं अम्बे बहार के, ये जो फ्रूट्स होते हैं आर वाटरी एंड पुअर इन टेस्ट एंड कीपिंग क्वालिटी इज़ वेरी लो। तो इस तरह के फ्रूट्स जो होते हैं जनरली वाटरी होते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, टेस्ट अच्छा नहीं होता, कीपिंग क्वालिटी भी इनकी अच्छी नहीं होती। यानी अम्बे बहार इन शॉर्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अम्बे बहार वाली गुआवा होता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट वन जो है हमारा मृग बहार है।
मृगबहार वाले गुआवा जो होते हैं उनकी फ्लावरिंग टाइम होता है जून जुलाई, यानी मानसून पीरियड में इनकी फ्लावरिंग आ जाती है, और फ्रूटिंग आती है दिसंबर जनवरी यानी विंटर्स में। तो मानसून में फ्लावर्स आता है और जाड़ों के टाइम पे विंटर्स में इसमें फ्रूट्स डेवलप हो जाते हैं। ये फ्रूट्स जो होते हैं एक्सीलेंट क्वालिटी के माने जाते हैं, यानी विंटर वाले जो गुआवाज आते हैं विंटर सीजन में हमें मार्केट में जो गुआवा दिखता है दैट इज़ मृगबहार, और वो उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इसके बाद लास्ट आता है हस्तबहार। हस्तबहार ऐसा गुआवा होता है जिसमें फ्लावरिंग होती है अक्टूबर के टाइम पे और फ्रूट डेवलप होते हैं फरवरी टू अप्रैल में, यानी वी कैन से दैट अक्टूबर दैट इज़ जो विंटर्स जब आने वाले होते हैं उस टाइम पे इसमें फ्लावर स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब स्प्रिंग सीज़न आता है फैब से लेकर अप्रैल तक का सीज़न यानी स्प्रिंग सीज़न, उसमें इनमें फ्रूट्स डेवलप होते हैं। बट ये जो हस्तबार वाला कंसेप्ट है गुआवा में, इसकी क्वालिटी होती तो अच्छी है बट इसकी ईल्ड जो होती है वो लो होती है। क्वालिटी इज़ गुड बट ईल्ड इज़ लो, और ये एक तरह का चांस क्रॉप होता है जनरली, और जनरली ये वेस्टर्न और साउथ इंडियन कंडीशन में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है हस्तबार। बट जो सुटेबल होता है वो होता है मृगबहार। तो हम तीनों को अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट फ्रूट क्वालिटी जो है वो मृगबहार में होती है, इसलिए मृगबहार वाले जो गुआवा होते हैं जनरली प्रेफर किए जाते हैं। और उनमें क्या होता है कि बाकी जो दो कैटेगरी थी अम्बे बहार और हस्तबहार, ये भी गुआवा में होता है, तो हमें क्या होना होता है इसको रेगुलेट करना होता है। इफ़ वी रेगुलेट द अम्बे बहार एंड हस्तबहार तो हमें क्या होगा, जो हमें फ्लावरिंग होती है फ्रूटिंग होती है वो डिज़ायर्ड कब होगी, मृगबहार वाले टाइम पे। यानी हम चाहेंगे कि हमारा जो गुआवा होता है उसमें विंटर सीजन दैट इज दिसंबर जनवरी में फ्रूटिंग आए, तो हमें अम्बे बहार और मृगबहार अम्बे बहार और हस्तबहार को अच्छे से रेगुलेट करना होगा। उनकी जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग हैबिट है उसको अच्छे से रेगुलेट करना होगा। और ये हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? सो हियर वी हैव 3 ऑप्शंस टू रेगुलेट द अम्बे एंड हस्तबहार। मीन्स द प्रैक्टिस फॉलो टू टेकिंग मृगबहार, यानी अगर हमें गुआवा में मृगबहार वाली गुआवा चाहिए तो हमको जो बाकी दो बहार थी यानी अम्बे बहार और जो दूसरा हस्तबहार था उसको हमें अच्छे से ट्रीट करना होगा, उसमें ट्रीटमेंट देने होंगे। तो बेसिकली हम जो ट्रीटमेंट्स देते हैं वो प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं वो 3 टाइप की प्रैक्टिस होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिस्ट्रिक्टिंग इरीगेशन वाटर, यानी अगर हम इरीगेशन वाटर की सप्लाई को रेगुलेट करें चेंज कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, अम्बे बहार और हस्तबहार वाले जो फ्लावर्स और फ्रूटिंग होती है उसको रेगुलेट कर उनकी टाइमिंग को रेगुलेट कर लेंगे। इसमें हम क्या करते हैं इरिगेशन रिस्ट्रिक्ट करने में, फर्स्ट इज द ट्री शुड नॉट बी गिवन इरिगेशन फ्रॉम फैब टू द मिडिल में। तो फैब से लेकर मिडिल में तक का जो टाइम होगा वहाँ पे हम इरिगेशन सप्लाई नहीं करेंगे, यानी जो स्प्रिंग सीजन वाला टाइम होता है स्प्रिंग से लेकर जो मई का टाइम होता है वहाँ पे हम इरिगेशन प्लांट को नहीं प्रोवाइड करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि जब गर्मी आएगी अप्रैल मई का टाइम जब आएगा, जब वेदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो लीव्स को प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, तो लीव्स जो होंगी वो शेड होनी स्टार्ट हो जाएंगी और वीकेंड से अब जो प्लांट है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। क्योंकि जो साउथ इंडियन कंडीशंस या सेंट्रल इंडियन कंडीशंस होती हैं वहाँ पे गुआवा का प्लांट कभी रेस्ट में नहीं आता, लेकिन हम चाहेंगे कि अब गुआवा जो है रेस्ट में आ जाए। जब गुआवा रेस्ट पीरियड में आ जाएगा तो उसके अंदर जो भी फूड मटीरियल होगा वो कंजर्व होने लगेगा और वो उसकी ब्रांचेस में जाके कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इन द मंथ ऑफ जून द ट्री इज़ वेल कल्टिवेटेड एंड मैन्योर्ड फॉलो बाय इरिगेशन। उसके बाद जून का जो टाइम आएगा जब एकदम पीक वाला जब जून आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे प्रॉपर कल्टीवेशन स्टार्ट करेंगे, इरिगेशन अप्लाई करते हैं। अबाउट 20 to 25 days द ट्री ब्लेज इन टू प्रोफ्यूज ब्लॉसम। ठीक है, तो इरिगेशन जब हमने फर्स्ट अप्लाई करा मैन्योर अप्लाई करा तो उसके 20 से 25 डेज बाद उसमें अच्छे से ब्लॉसम आएगा, फूल आएगा, उसके बाद फूल से उसमें फ्रूट बन जाएगा जो कि मैच्योर होगा विंटर सीजन में जाके। ठीक है, तो विंटर सीजन में फ्रूट जाके मैच्योर होगा यानी हमको मृगबहार वाला गुआवा मिल गया। कैसे मिला? बाय रिस्ट्रिक्टिंग इरिगेशन वाटर। सेकेंड कंडीशन जो हमारे पास आती है दैट इज एक्सपोजिंग रूट्स। अगर हम गुआवा की प्लांट में उसकी रूट्स को थोड़ा सा एक्सपोज कर दें, एक्सपोज कहाँ से करना है? मिट्टी हटा के। ठीक है, कैसे करते हैं? रिमूव द सॉइल अराउंड द ट्रंक अबाउट 45 to 60 सेंटीमीटर रेडियस। तो ट्री का जो ट्रंक का बेस होता है उसके आगे 45 से 60 सेंटीमीटर रेडियस के अलाउंग जितनी भी सॉइल उसको हम हटा देंगे ताकि जो रूट्स हैं वो सनलाइट में एक्सपोज हो जाएं। जब रूट सनलाइट को एक्सपोज होंगी तो प्लांट में क्या होगा, जो लीव्स होंगी वो शेड होने स्टार्ट हो जाएंगी, वी कैन से प्लांट रेस्ट में आ जाएगा। तो हमारा मेन काम यही है कि हमें प्लांट को रेस्ट पोजीशन में लेकर आना है। तो लीव्स फॉल हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, 3 to 4 वीक्स बाद हम क्या करेंगे, जो रूट्स एक्सपोज हुई थी उसको हम दोबारा से सॉइल से कवर कर देंगे। पहले हमने रूट्स को एक्सपोज कर लीव्स को फॉल होने दिया, रेस्ट पीरियड आ गया। उसके बाद लीव्स जो रूट्स होती हैं उसको अगेन वी विल कवर्ड इट विद सॉइल
सॉइल से कवर करने के बाद हम वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन और मैन्योरिंग अप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगेन वहाँ पे फ्लावर डेवलप होगा, फ्रूट्स डेवलप होंगे और वो फ्रूट्स मैच्योर हो जाएंगे विंटर सीजन में। दैट इज़ विंटर सीजन में जो गुआवा मिल रहा है दैट इज़ मृग बहार। सो हियर वी ऑब्टेन मृग बहार गुआवा बाय एक्सपोजिंग द रूट्स ऑफ गुआवा ट्री। थर्ड कंडीशन भी हमारे पास होती है दैट इज़ डी ब्लॉसमिंग। डी ब्लॉसमिंग कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो ब्लॉसम्स होते हैं उनको हटा देंगे, उनको रिमूव कर देंगे, यानी जो बर्ड्स आती हैं फ्लावर बर्ड उनको रिमूव करना होता है। यानी अगर अम्बे बहार वाले और हस्त बहार वाले टाइम में अगर फ्लावर बर्ड दिख रही है तो उसको सिंपल रिमूव कर देंगे, और जो मृग बहार मृग बहार वाले जो फ्रूट्स फ्लावरिंग आएगी उसको हम एज सच रिटेन करेंगे। इसके लिए हम कुछ केमिकल यूज़ कर सकते हैं लाइक NAA@600 ppm प्लस यूरिया 1.5%। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम यूज़ करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो प्लांट होता है उसमें डी ब्लॉसमिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैन द फ्लावर्स ऑफ अम्बे बहार आर डी ब्लॉसम और थिन द ट्री बिकम मोर पोटेंशियल टू प्रोड्यूस मोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन मृग बहार। तो ऑटोमेटिकली जब हम अम्बे बहार वाले फ्लावर्स को हटा देंगे तो मृग बहार वाले जो फ्लावर्स हैं उस टाइम पे जो फ्लावरिंग का पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, फ्लावर्स आएंगे और मृग बहार में फ्रूट्स भी प्रॉपर डेवलप होंगे। तो ये 3 कंडीशन थी जिससे हम मृग बहार वाले को फ्रूट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला था इरिगेशन वाटर रिस्ट्रिक्ट करना, रूट्स को एक्सपोज करना, और लास्ट होता है डी ब्लॉसमिंग। सो दीज आर थ्री ट्रीटमेंट्स बाय विच वी रेगुलेट द गुआवा ट्री। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। So training and pruning is very essential for the overall development of the plant. The main objective of training of the guava is, गुआवा में जो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग चाहे किसी भी क्रॉप में करते हैं, ट्रेनिंग का मेन पर्पस होता है प्लांट को एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी जो डैमेज ब्रांचेस होती हैं उनको हम अवॉइड करते हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं। जो गुआवा होता है पर्टिकुलरली उसमें जो हम ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो करते हैं दैट इज़ ओपन सेंटर सिस्टम। ओपन सेंटर सिस्टम में क्या होता है कि हम जो गुआवा में ओपन सेंटर सिस्टम वाली ट्रेनिंग करते हैं, इसमें हमारा जो गुआवा का प्लांट होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्लांट है सपोज ये गुआवा का, ये उसका मेन ट्रंक है, तो उसके मेन ट्रंक को हम ग्राउंड लेवल से 60 से 70 सेंटीमीटर तक ग्रो कराते हैं। उसके बाद उसका हेड बैक कर देंगे, कट कर देंगे। उसके बाद इक्वल सारी जो ब्रांचेस होती हैं सारे डायरेक्शंस में ग्रो करेंगे, बस सेंटर जो होगा वो फ्री होगा, यानी सेंटर वाला पोर्शन को फ्री छोड़ के बाकी सारी ब्रांचेस जो हैं इक्वल डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। उसके बाद अगेन उसमें से सेकेंडरी ब्रांचेस इस तरह से ग्रो होंगी, यानी सेंटर जो होगा वो फ्री होगा। दैट इज़ कॉल्ड ओपन सेंटर सिस्टम। और ओपन सेंटर सिस्टम को ही हम वास्ट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें प्लांट के सेंटर वाले पोर्शन को हम एकदम फ्री रखेंगे और उसके बाद 60 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक प्लांट्स को हेड बैक कर देंगे और सारी ब्रांचेस को आराम से ग्रो होने देंगे। और उन ब्रांचेस के बीच में प्रॉपर हमें एंगल भी मेंटेन रखना होगा और स्पेस मेंटेन रखना होगा ताकि फ्रूट्स को स्पेस मिल सके अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये होता है हमारा ओपन सेंटर सिस्टम। ठीक है, दिस इज़ अबाउट ओपन सेंटर सिस्टम इन गुआवा। अब ट्रेनिंग हो गई, इसके बाद प्रूनिंग में आते हैं। इन गुआवा द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर बोर्न ऑन करंट सीजन ग्रोथ, पहले पढ़ चुके हैं। इन द एक्सिल्स ऑफ द लीव्स अराइजिंग फ्रॉम द ओल्ड वन, हैंस द लाइट एनुअल प्रूनिंग इज कंसिडर्ड नेसेसरी। तो यहाँ पे गुआवा में जो प्रूनिंग होती है बहुत ज़्यादा सीवियर प्रूनिंग नहीं होती, बहुत ही हल्की लाइट प्रूनिंग होती है। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इसकी जो ग्रोथ होती है, आई मीन इसमें जो बीयरिंग हैबिट होती है वो करंट सीजन ग्रोथ में होती है। तो करंट सीजन ग्रोथ में होने की वजह से हम इसमें बहुत ही लाइट प्रूनिंग करते हैं। सीडलिंग ट्रीज ग्रो वर्टिकली हाई अप प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स बेयरिंग न्यू ग्रोथ एट द देयर टॉप एंड। अगर हम सीड से प्रोपोगेट करते हैं तो फ्रूटिंग जो होती है वो टॉप एंड्स में होती है। दे डोंट प्रोड्यूस मच फ्रूट्स लोअर डाउन। तो नीचे वाले पोर्शन में फ्रूटिंग बहुत कम होती है और टॉप वाले पोर्शन में फ्रूटिंग जो होती है ज़्यादा होती है अगर हम सीडलिंग से प्रोपोगेट करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम वेजिटेटिव मैथड अप्लाई करते हैं लाइक ग्राफ्टिंग या लेयरिंग का, इट रिमेन ड्वार्फ एंड देयर ब्रांचेस ग्रो हॉरिजेंटली। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो प्लांट वो ओवरऑल ड्वार्फ होता है, हॉरिजेंटल ग्रोथ उसमें होती है। ड्रूपिंग प्रोड्यूस इनॉर्मस नंबर ऑफ फ्रूट्स बेयरिंग शूट। दिस सजेस्ट दैट सीडलिंग्स ट्री कैन ऑल्सो बी मेड मोर प्रोडक्टिव बाय बेंडिंग द अपराइट ब्रांचेस हॉरिजेंटली। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम सीडलिंग वाले ट्रीज़ को भी बेंड कर दें, बैंडिंग कर दें, तो उसमें भी क्या होगी, हॉरिजेंटल ग्रोथ होने लगेगी। नॉर्मल सीडलिंग वाले जो प्लांट होते हैं उसमें जो ग्रोथ थी वो अपराइट हो रही थी, लेकिन अगर हम बेंड कर देंगे शूट्स को तो ग्रोथ हॉरिजेंटली होगी। प्रूनिंग ऑफ गुआवा
क्यों करते हैं? प्रूनिंग से हमें बेसिकली जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं वो हाई वैल्यू फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावरिंग अर्ली होती है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बर्ड्स, रैट्स, जितने भी रोडेंट्स होते हैं उनसे, ड्यू टू कवरिंग ऑफ विगरस फॉलिएज। सीवियर प्रूनिंग रिड्यूस yield largely, light pruning is always desirable. This point is very important here कि कभी भी हमें प्रूनिंग सीवियर नहीं करनी होती है। गुआवा के केस में याद रखना कि प्रूनिंग जो होती है लाइट होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम लाइक व्हाट टाइप ऑफ या फिर इंटेंसिटी ऑफ प्रूनिंग से आ सकते हैं कि गुआवा में जो प्रूनिंग की इंटेंसिटी होती है वो कैसी होती है, लाइट होती है, सीवियर होती है, कैसी होती है? तो गुआवा क्रॉप में प्रूनिंग इंटेंसिटी लाइट होती है। लाइट क्यों होती है? बिकॉज जो बियरिंग होती है वो करंट सीजन ग्रोथ में हो रही है। दैन बैंडिंग क्या होता है? बैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरकल्चर ऑपरेशन और वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन गुआवा क्रॉप। तो व्हाट इज़ बैंडिंग? इट इज़ कॉमन फीचर दैट इन द गुआवा ट्री ब्रांचेस ग्रोइंग अपराइट एंड टॉल डोंट बियर एट ऑल। तो यानी ऐसे गुआवा ट्रीज जिसकी ग्रोथ अपराइट डायरेक्शन में हो रही है और बहुत टॉल हो रहा है तो वहाँ पे हम बैंडिंग करते हैं। इन सच केसेस स्ट्रेट ग्रोइंग ब्रांचेस मे बी बैंड एंड टाइड इन द पेग्स ड्राइवन बाय द ग्राउंड। तो इसको हम बेंड कर देते हैं और उसके ऊपर फिर सॉइल को चढ़ा देते हैं, दैट इज बेंडिंग। इन बैंड ब्रांचेस डॉर्मेंट बर्ड्स आर एक्टिवेटेड एंड इंड्यूस्ड टू बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैवली। तो जब हम उन ब्रांचेस को बेंड कर देते हैं, सॉइल के साथ अटैच कर देते हैं, सॉइल उसमें चढ़ा देते हैं उस पोर्शन में, उसके बाद जब ब्रांचेस हमने बेंड करी उसमें एक डॉर्मेंट बर्ड होती है। वो डॉर्मेंट बर्ड जो होगी वो डॉर्मेंट ना रह के एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के कारण उसमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे फ्रूट्स डेवलप होगा। एंड दिस मेथड इज स्पेशली सक्सेसफुल इन वेराइटीज़ विच ग्रो इरेक्ट एंड बियर लिटिल फ्रूट। तो ये उन वेराइटीज़ में फॉलो करते हैं जो इरेक्ट होती हैं, यानी जिनमें ग्रोथ एकदम सीधी अपराइट जाती है और उनमें फ्रूट्स बहुत कम आते हैं। तो ऐसी वेराइटीज़ में हमें बेंडिंग ऑपरेशन करना चाहिए, यानी जो सिंपल ब्रांचेज होती हैं उनको हम बेंड कर देंगे, ऐसे करके उसको अच्छे से बेंड कर देंगे और इतने एरिया में वहाँ पे सॉइल से कवर कर देंगे। तो इसके बाद जो आगे फिर सॉइल से इतना हिस्सा जो हमारा सॉइल में कवर हो जाएगा, ये गुआवा का प्लांट है और हमने जब ब्रांचेस को बेंड कर दिया तो इतना हिस्सा हमने सॉइल को कवर कर दिया। अब इसके आगे क्या होगी? यहाँ पे तो सॉइल कवर है, इसके आगे यहाँ से प्लांट अगेन ग्रो करेगा और यहाँ पे जो बर्ड्स थी वो एक्टिव हो जाएंगी, लाइक इन दिस वे। तो ये होता था बेंडिंग। गुआवा में बेंडिंग होती है इस तरह से होती है। द नेक्स्ट वन इज इरिगेशन। इरिगेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुआवा। बेसिकली द यंग गुआवा प्लांट नीड्स इरिगेशन वीकली इंटरवल ड्यूरिंग समर। तो यंग गुआवा है तो उसमें इरिगेशन वीकली इंटरवल्स में हमें सप्लाई करना होगा इफ समर सीजन इज देयर, बट विंटर्स में 2-3 इरिगेशन इज सफिशिएंट। जस्ट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग वाटर इज नेसेसरी इन द एब्सेंस ऑफ रेन। तो ट्रांसप्लांटिंग के बाद अगर रेनफॉल नहीं हो रहा तो हमें वाटर अप्लाई करना होगा इरिगेशन के थ्रू। फॉर बियरिंग ट्रीज इरिगेशंस आर नीडेड फॉर फ्लावरिंग एंड बेटर फ्रूट सेटिंग। वैसे जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं एक तो होती है फ्लावरिंग और एक होता है फ्रूट सेटिंग के टाइम पे इरिगेशन। फ्रूट साइज इज रिड्यूस्ड इफ सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर इज नॉट मेंटेन। तो अगर सॉइल में प्रॉपर मॉइस्चर नहीं होगा तो फ्रूट्स का जो साइज है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो सकता। इरिगेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेक एक्सेसिव फ्रूट ड्रॉपिंग ड्यूरिंग समर मंथ। तो समर में हमने देखा समर में वीकली इंटरवल्स में हमको इरिगेशन अप्लाई करना होगा, अदरवाइज जो फ्रूट है वो फ्रूट ड्रॉप होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। इन मेन्योर एंड फर्टिलाइजर तो गुआवा, द फ्रूट्स ऑफ गुआवा बोर्न ऑफ करंट सीजन ग्रोथ, ये हमको सबको पता चल गया है, ये बहुत टाइम्स रिपीट भी हुआ है कि कौन सी सीज़न की ग्रोथ में फ्रूट्स आते हैं। बियरिंग जो होती है करंट सीजन ग्रोथ में होती है। सो देयरफॉर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इंकरेज वेजिटेटिव ग्रोथ एंड फ्रूटिंग। तो मैन्योर्स में जनरली हम यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट, ठीक है, जो FYM या कंपोस्ट होती है, ये हम डालते हैं 1 ईयर आफ्टर प्लांटिंग। तो 20 kg हम अप्लाई करते हैं 1 ईयर आफ्टर प्लांटिंग। उसके बाद हर साल हमें 20 kg अप्लाई करना होता है। और जब प्लांट बियरिंग स्टेज में आ जाता है, ठीक है, तो गुआवा का प्लांट जो होता है वो 8 से 10 साल में बियरिंग स्टेज में आ जाता है, तो तब हम उसका जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज़ कर देंगे, दैट इज़ 100 kg। और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अमोनियम सल्फेट। इसको स्टार्टिंग में हम यूज़ करेंगे 1 kg और जैसे जैसे ग्रोथ इंक्रीज़ होगी, बियरिंग आ जाएगी तो 3 kg अप्लाई करेंगे। सुपर फॉस्फेट अप्लाई करेंगे, वो भी 1 kg और जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो ये हो जाएगा 2 kg। और MOP दैट इज़ म्यूरेट ऑफ पोटेश, जो पोटेश होता है
ठीक है, इसको हम KCL बोलते हैं। KCL जनरली हम अप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में, से इसका भी सेम है, 1 kg अप्लाई करेंगे और ग्रोथ सीजन आते आते बीयरिंग के टाइम पे इसका अमाउंट भी 2 kg के आसपास हो जाएगा। तो ये था हमारा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन इन द गुआवा प्लांट। नाउ वी डिस्कस द इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पर्टिकुलरली, बिकॉज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में हम जो ग्रो करते हैं उनके बीच में स्पेसिंग काफ़ी रहती है, तो जब तक प्लांट बियरिंग नहीं कर रहा तो हम उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं बाय ग्रोइंग सम इंटरक्रॉप्स। तो गुआवा के केस में हम जो इंटरक्रॉप्स ग्रो करते हैं उसमें हम वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हैं, लाइक भिंडी, ब्रिंजल, बीट रूट एक्सेट्रा। और फ्रूट्स में हम जनरली ग्रो करते हैं पपाया को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरक्रॉप होते हैं गुआवा के केस में। बट इंटरक्रॉपिंग में ध्यान रखना है, इंटरक्रॉपिंग इज़ नॉट डिजायरेबल इन ऑर्चर्ड्स विथ फुल ग्रोन प्लांट। तो जब गुआवा प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, फ्रूट्स आने लगेंगे, उस टाइम पे हमें इंटरक्रॉपिंग नहीं करनी है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द हार्वेस्टिंग। तो गुआवा की जो हार्वेस्टिंग के लिए पॉइंट्स, इसेंशियल पॉइंट्स होते हैं, वो ये होता है कि गुआवा में जो बीयरिंग हो रही है, फ्रूट आ रहा है, उसके कितने दिन बाद आ रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सीडलिंग गुआवा ट्री रिक्वायर 4 to 5 years टू बियर। तो सीड से प्रोपगेशन करेंगे तो 4 से 5 साल लग जाते हैं, जबकि वेजिटेटिवली प्रोपगेट अगर प्लांट होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने कौन सा पढ़ा था, ए लेयरिंग पढ़ा था, इन आर्चिंग पढ़ा था। तो अगर वेजिटेटिवली प्लांट को प्रोपगेट करेंगे तो उसमें बियरिंग जो होती है अर्ली होती है, यानी विद इन 2 years। तो उनमें प्लांटिंग, उनकी फ्रूटिंग, बियरिंग जल्दी हो जाती है। टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग, फ्रूट मैच्योरिटी। तो अमरूद में फूल आने से, फूल के आने के बाद फल का मैच्योर होने के जो समय होता है, दैट इज़ 130 to 150 डेज। इतना टाइम उसको लगता है फ्लावर से फ्रूट को मैच्योर होने में। और फ्रूट डेवलपमेंट जो होता है जनरली उसमें डबल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व फॉलो होता है, यानी जो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व होता है वो डबल होता है, ठीक है, डबल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व होता है। और मैच्योरिटी इंडेक्स की बात करें तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। हार्वेस्टिंग स्टेज जो होती है जनरली ग्रीन फॉर्म स्टेज, तो जब गुआवा प्लांट में लगा हुआ ग्रीन कलर का हो जाए और फॉर्म हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, उस स्टेज में हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हमको गुआवा को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करना है तो हम उसको हाफ मैच्योर स्टेज में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि गुआवा एक तरह का क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वो होते हैं जिनको हार्वेस्टिंग के बाद भी चांसेस होते हैं कि वो अपना इथाइलिन जो उसमें राइपनिंग होती है वो कंटिन्यू रहती है। दैट इज क्लाइमेट्रिक टाइप ऑफ फ्रूट एंड गुआवा इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट। नाउ वी डिस्कस इट्स यील्ड। तो लास्ट में जो हमें आती है यील्ड आती है गुआवा की, वो वेरी करती है कि हमने कौन सी वैरायटी ली है, प्लांट का एज क्या है, सीजन क्या है, और हम कैसी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। बट ओवरऑल जो सीडलिंग वाले गुआवा होते हैं जिनको हम सीड्स के थ्रू रेस करते हैं, दे विल उनमें क्या होता है कि सीड्स के थ्रू अगर हम गुआवा को प्लांट करेंगे तो उसमें 8 से 10 साल लग जाएंगे बीरिंग में। तो जब 10वां साल लग जाएगा उसकी से हमें ईल्ड मिलेगी, दैट इज़ 400 to 500 फ्रूट्स। एक पेड़ से इतने फ्रूट्स हमको मिल जाएंगे। और अगर हमने वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करा है, लाइक ग्राफ्टिंग करा है, तो उसमें क्या ईल्ड आएगी 1000 to 2000 फ्रूट्स, वेयर एज गुड ऑर्चर्ड ईल्ड अबाउट 25 to 30 टर्न्स पर हेक्टेयर। तो वैसे जो ईल्ड होगी वो ऑर्चिड में लगा रखे हैं हमने, प्रॉपर मैनेजमेंट कर रखा है, तो 25 से 30 टर्न्स पर हेक्टेयर ईल्ड जो होती है वो गुआवा से ऑब्टेन हो जाती है।